Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Miss Arzu from Multan Public School and College for Girls. As you know, I am your maths teacher, and we will study the D2 mathematics. So, my dears, in our previous lesson, we had done the topic direct proportion, and we had also done the exercises related to this one topic. So today we will start our new topic, inverse proportion, and we will do the exercise related to this topic. It is exercise 1C. So first of all, I will introduce with the definition. I will introduce all of you with the definition of the inverse proportion. As you know, in the direct proportion, it was the relation between two quantities such that if one quantity is increasing, then other will also will increase. If one quantity is decreasing, then other will also be decreased. But in inverse proportion, the definition will be like this: a relation between two quantities such that one increases in proportion as other decreases, and vice versa. It means that if your one quantity is increasing, at this time your next quantity, your other quantity will be decreasing at the same time. I mean कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसी ही रेट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड इफ योर वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, देन योर अदर क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड. इट्स मीन्स डैट कि अगर आपकी एक क्वांटिटी कम हो रही है तो आपकी दूसरी क्वांटिटी उसी ही सेम रेट से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. सो in the direct proportion, as we know that if you are having the two quantities, two variable, independent and dependent variable. ठीक है, we had already done this. ठीक है, you know that कि as y is directly proportional to x, then it is mathematically it was written like that: y is directly proportional to x, and we have derived this formula: y is equal to kx, where k is constant of proportion. You know it very well. ठीक है. Same like in inverse proportion, if y is inversely proportional to x. ठीक है. सेम लाइक जो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किया था, यू कैन सी इन योर प्रीवियस लेसन, जो मैंने आपको पहले बताए थे. सेम criteria will be used this: if y is inversely proportional to x, then mathematically it will be written like that: y is directly proportional, inversely proportional to x. Inverse क्या होता है? जैसे x है, उसका inverse क्या होगा? 1/x. So y is inversely proportional to x, which implies that y, जैसे ही हम proportionality का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं, तो हमारे नेक्स्ट वेरिएबल के साथ क्या आ जाता है? Constant of proportionality, k over x, and further it can be written like that: x y is equal to k. This is our mathematical equation for the inverse proportion, and we will use this mathematical equation या this mathematical formula in our questions as per requirement. ठीक है. अब we will use the inverse proportion in our daily life. कि हमारी डेली लाइफ में inverse proportion कैसे यूज़ होता है. आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि जब डायरेक्ट proportion की हमने बात की थी कि in that one we had taken the example of lead pencils and our प्राइस. हमारे प्राइस और क्वांटिटी की हमने एक एग्जांपल ली थी कि हमने ये कहा था कि इफ़ यू विल बाय द 2 पेंसिल्स एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल इज 10 रुपीज़, यू विल पे 20. जैसे जैसे आप अपने क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएंगी. क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेंगे, आपकी प्राइस डिक्रीज़ होती जाएंगी. ये हमने डायरेक्ट में किया था. अच्छा, इनवर्स की मैं आपको क्या एग्जांपल दूंगी? यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टाइम एंड स्पीड. You can take the example of days and workers. You can take the example of current and resistance in your daily life. अच्छा, अब टाइम एंड स्पीड की एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू लाहौर. ठीक है. अब आपको पता है कि हम जब लाहौर जाते हैं, हमारा डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स्ड होता है. हमारा डिस्टेंस क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. और टाइम जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है. अब टाइम और स्पीड, अब आपको पता है कि अगर आप अपनी कार की स्पीड को जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, इफ़ यू विल इंक्रीज योर स्पीड, यू विल टेक द लेसर टाइम. डेफिनेटली ना, आपका टाइम कम लगेगा. एंड इफ़ यू विल डिक्रीज द स्पीड, यू विल टेक द मोर टाइम. जैसे ही आप अपनी स्पीड को कम करेंगे, टाइम आप ज़्यादा लेंगे. सेम लाइक डेज एंड वर्कर्स. डेली लाइफ में अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ज़रूर आप इसका इम्प्लाई किया करें. ठीक है.
अच्छा, अब डेज एंड वर्कर्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग अ वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर क्या है, कुछ वर्कर्स को, आप वो वर्कर्स कुछ वहाँ पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इफ़ यू विल इंक्रीज योर मैन पावर यू विल टेक द लेसर डेज। डेफिनेटली अगर आपकी मैन पावर ज़्यादा होगी, वर्कर ज़्यादा होंगे, तो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कम डेज लेंगे, कम टाइम लेंगे। अगर आपकी मैन पावर कम होगी, इफ़ योर वर्कर्स आर लेस इन नंबर्स, देन यू विल टेक मोर डेज। सेम लाइक करंट एंड रेजिस्टेंसी, यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल इन लाइक दैट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एक वायर है, आप उस वायर में से एक करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। अगर उस वायर में आपके पास थोड़े थोड़े टाइम पीरियड, थोड़ी थोड़ी जगह पर कट्स हों, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डेफिनेटली रेजिस्टेंसी ज़्यादा होगी। इफ़ योर रेजिस्टेंसी अगर आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम लाइक अगर आपकी वायर बिल्कुल न्यू हो, उसमें कोई रेजिस्टेंसी ना हो, रेजिस्टेंसी कम होगी तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंसी ज़्यादा होगी तो करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो ये तो थी हमारी एग्जांपल फ्रॉम अवर डेली लाइफ। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 1C एंड जो मैंने आपको एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से दी है, यू विल सी इन योर एक्सरसाइज कि उसी ही डेली लाइफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम लोग अक्सर अपनी लाइफ में कहते हैं कि मैथ्स का यूज नहीं है जी डेली लाइफ में, बट मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ठीक है। मैथ्स तो हर जगह पे अप्लाई होता है। सो लेट्स कम and start the exercise. So exercise 1C. So first of all we will do the question number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे ट्रू फॉल्स है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू दीज क्वेश्चंस, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। आप देखेंगे आपको खुद भी खुद समझ आ जाएगी कि उसमें क्या करना है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 8 men can build a bridge in 12 days. Find the time taken for 6 men to build the same bridge. ठीक है, अब क्या है इस क्वेश्चन में है, देखें जो मैंने आपको डेज और वर्कर की एग्जांपल दी थी ना, इट इज ऑल्सो अप्लाइंग हियर, ठीक है। अब देखो अगर वो कहता है कि 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज, अगर 8 मैन जो है वो एक ब्रिज को बनाते हैं, ठीक है, इन 12 डेज। कितने डेज में? 12 डेज में। वो कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अब कहते हैं कि उसी ही सेम ब्रिज को अगर 6 मैन बना रहे हो तो वो कितना टाइम लेंगे। यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, पहले हमारे पास कितने आदमी थे? 8 मैन थे। उन्होंने कितने डेज में काम किया? 12 डेज में। अब हमारे पास कितने मैन हो गए? 6 मैन हो गए। अब मैन क्या हुए? पहले 8 मैन थे, अब मैन कितने कर दिए हमने? 6 कर दिए। कहते हैं देन these 6 मैन हाउ मच डेज विल बी टेक these 6 मैन, कि ये 6 मैन कितना टाइम लेंगे। डेफिनेटली मैन कम हुए हैं तो टाइम, अब हमारे पास नंबर ऑफ डेज क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे ना। देखिए ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट करके पढ़ के हमें पता लग रहा है कि अब हमारे पास ये क्या हुआ है? इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम पहले क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बी 6 मैन इज x, ठीक है। अब 6 मैन बी x, हम इसमें क्या करेंगे, हेयर वी आर गोइंग टू मतलब रिलेट गोइंग टू टेक द प्रोपोर्शन बिटवीन 2 थिंग्स, 2 वेरिएबल्स, डेज और मैन, ठीक है। तो हम इनको एक प्रोपोर्शन फॉर्म में लेंगे। इफ यू विल डू द क्वेश्चन लाइक इन दिस फॉर्म, दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो वी विल टेक द प्रोपोर्शन बिटवीन 2 क्वांटिटी। एज यू नो कि रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज, रेशियो इज द रिलेशन, रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज। अब मैन और टाइम, हमने मैन लिया और टाइम लिया। अब देखिए हम इनके दरमियान क्या बनाएंगे, एक हमारे पास क्या होगा, रेट प्रोपोर्शन बनाएंगे। अगर 8 मैन है तो वो कितने डेज लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं। आप टाइम भी लिख सकते हैं, आप डेज भी लिख सकते हैं। 8 मैन जो है वो 12 डेज लेते हैं। अच्छा, अब 6 मैन कितना टाइम लेते हैं जी, हमने उसको सपोज किया कि वो क्या है, x है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी पूरी स्टेटमेंट हमें क्या है, गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हैं, मैन 8
डेज 12, ये गिवन था। मैन 6, हमने उसके डेज क्या सपोज किए हैं, एक्सपोज किए हैं। अब हम यहाँ पे दो साइन इन्वर्ट करेंगे खुद से, एक साइन डायरेक्ट का लगाएंगे, एक साइन हम इसमें क्या लगाएंगे, इन्वर्स का। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो इस तरह का एरो हेड होता है ये हमारे पास किस चीज को शो करता है, दो चीजों के बिटवीन डायरेक्ट रिलेशन को, और जो इस तरह का साइन होता है वो हमारे पास दो क्वांटिटीज के बिटवीन कौन से रिलेशन को शो करता है, इन्वर्स रिलेशन को। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम कहाँ पे डायरेक्ट का साइन लगाएंगे और कहाँ पे इन्वर्स का साइन लगाएंगे, लेट कम्स विद मी। ठीक है, अब ये देखें, ये है 12 और ये है x। आपने बगैर किसी हेजिटेशन के, जहां पे एक अननोन होगा, ये x यहाँ पे अननोन है ना, विच यू हैव टू फाइंड, जो आपने क्या करना है, फाइंड करना है, वहां पे आपने क्या कर देना है, एरो हेड लगा देना है, कौन सा, डायरेक्ट का। जहां पे हमेशा एक अननोन होगा वहां पे आपने बगैर सोचे समझे कौन सा साइन लगा देना है, डायरेक्ट का। अच्छा, अब इधर जहां पे मैन है, जहां पे दोनों चीजें हमें नोन है, अब देखो 8 मैन थे तो उन्होंने कितने डेज लिए, 12 डेज लिए। यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हम इनवर्स का साइन लगाएंगे या डायरेक्ट का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैन 6 मैन है तो वो जी कितने डेज लेंगे, अब हमारे माइंड पे डिपेंड करते हैं। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे मैन कम हुआ है तो डेफिनेटली डेज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्या बात हुई कि मैन कम हुए हैं, जाहिर बात है मैन पावर कम हुई है, मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, तो डेज हमारे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा साइन प्लेस कर देंगे, वी विल प्लेस द साइन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन देयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल वैसे, अब ये देखें हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ एरो हेड, यहाँ ये जब आप अक्सर देख रहे होंगे, इफ़ यू आर गोइंग ऑन सम रोड, अगर आप किसी रोड पे जा रहे होंगे, अगर आप अक्सर देखते होंगे कि एरो हेड्स लगा होते हैं। ठीक है, कि यहाँ से हमने यहाँ जाना है, यहाँ से यूँ, आपके पास इस तरह से एरो हेड्स लगे होते हैं कि आपने यूँ चलना है, आपको यूँ जाके फिर यूँ जाना है, तो हम इसी एरोस की डायरेक्शन में जाते हैं ना। तो सेम लाइक अब ये देखें, ये एरो हेड कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है ना, ठीक है ना। तो हमें मतलब है यहाँ पे क्या पता है कि वी विल गो फ्रॉम 8 to 6। हम क्या लिखेंगे, इसकी कौन सी रेशियो बनाएंगे, 8/6। अब इधर आ जाए, ये वाला एरो हेड हम कैसे लगाएंगे, वी आर गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, इस एरो का यही मतलब है ना। तो वी विल राइट लाइक दैट x/12, और इनके बीच हम कौन सा साइन लगाएंगे, इक्वालिटी का, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाई x 6x, 8 मल्टीप्लाई बाई 12 96। नो, वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय 6 बिकॉज वी हैव टू फाइंड x। जब दोनों साइड पे 6 पे डिवाइड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। 6 1s are 6, 3 will be carry there, and 6 6s are 36. You will get x is equal to 16 days. This will be your required days which you have to find, and this will be the days. This will so this is your final answer which the 6 man will be take to complete their project. ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैन 8 मैन थे तो कितने डेज थे, 12 डेज थे। जब 6 मैन हुए तो डेफिनेटली मैन कम हुए हैं तो डेज क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और हमारा आंसर भी यहाँ पे क्या आया है, x is equal to 16 days. Now come to the next question. It is question number 7. First, I mean we will do question like all these type of question जो हमने question number 2 में किया ना, पहले हम सारे उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे. No, let's come to the question number 7. Question number 7 is that at a sport camp there is a sufficient food for 72 athletes to last 6 days. If 18 athletes are absent from the camp, how many more days the food can last for other athletes? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक स्पोर्ट कैंप है, उस स्पोर्ट कैंप में टोटल कितने एथलीट्स की मतलब स्पेस है 72, एंड दे आर हैविंग सफिशिएंट फूड फॉर द 6 days. अब क्या है कि when the camping is going to start, if 18 athletes are absent, अगर उन 72 एथलीट्स में से 18 एब्सेंट क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाएंगे, डेफिनेटली एथलीट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. सो वो कहता है कि इफ़ द 18 एथलीट्स आर एब्सेंट देन हाउ मैनी मोर डेज द फूड कैन लास्ट फॉर द एथलीट्स. डेफिनेटली बेटा देखें, आप अपनी एक सिंपल एग्जांपल लें. आपको ये कहा गया है कि 72 एथलीट्स की कैंपिंग है और वो कितने डेज के लिए फूड यूज़ करते हैं, 6 डेज के लिए. डेफिनेटली अगर उनमें से 18 एथलीट्स एब्सेंट
एब्सेंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनके पास डेज क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो वो आपको यही बात पूछना चाह रहा है कि हाउ मैनी मोर डेज द फूड कैन लास्ट फॉर अदर एथलीट्स। तो इसका मतलब है कि 6 में से कुछ डेज उन एथलीट्स को क्या मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कहते हैं कि 6 में से उन्हें कितने डेज क्या है, एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है फूड के लिए, 2 डेज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब हम देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द टोटल डेज के 6। देखो 6 डेज के लिए तो 72 एथलीट्स को फूड दी गई थी। जब एथलीट्स कम हुए हैं तो 6 से ज़्यादा डेज हो जाएंगे, हो सकता है 7 डेज हो जाएं, हो सकता है 8 डेज हो जाएं। पहले हम वो टोटल डेज फाइंड करेंगे, फिर हम उसको बताएंगे कि हमारे कितने डेज, हमें मोर डेज मिले हैं। सो लेट द नंबर ऑफ डेज बी x. Here we will also take the ratio between two वेरिएबल्स, एथलीट्स एंड डेज। अब जब 72 एथलीट्स थे तो वो कितने डेज के लिए फूड यूज़ करते थे, 6 डेज के लिए। अब हमने यहाँ पे एक गलती ये वाली नहीं करनी। समटाइम स्टूडेंट क्या ले लेंगे, ये 18 एथलीट्स, नो, दीज 18 एथलीट्स आर एब्सेंट। सो हाउ मच रिमेनिंग एथलीट्स आर देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस। सो कम हियर, नंबर ऑफ एब्सेंट एथलीट्स कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। सो रिमेनिंग एथलीट्स कितने हो जाएंगे, 72 में से 18 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे टोटल एथलीट्स की कैंपिंग थी, उसमें से 18 क्या हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं। तो 72 वी विल सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 72, देन वी विल गेट द टोटल रिमेनिंग एथलीट्स कितने हो जाएंगे हमारे, 54। तो हमारे जो रिमेनिंग एथलीट्स है वो 54 है। अब ये 54 एथलीट्स फूड को यूज़ करेंगे और उनके नंबर ऑफ डेज देखते हैं इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। सो कम हियर नाउ, 72 एथलीट्स will be use the food for 6 days and the 54 athletes will be use the food for the कितने डेज के लिए, x डेज के लिए। नो, सो हेयर वही बात कि मैं अब एरो हेड प्लेस करूंगी यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि एक अननोन वेरिएबल होगा, वहाँ पे हम कौन सा एरो हेड प्लेस करेंगे, इन डायरेक्ट का। ये डायरेक्ट का था ना, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। नो कम हेयर, ठीक है। अब so you can see 72 athletes are using food for 6 days. Now 54 athletes will be will be use the food for how many days, ठीक है। अब एथलीट्स कम हुए हैं तो डेफिनेटली डेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो हेयर वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग देन अदर विल बी इंक्रीज, सो वी विल प्लेस द इनवर्स प्रोपोर्शन साइन हेयर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, x हम कैसे लिखेंगे, वही बात कि हेयर वी कैन सी दैट वी आर गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, x over 6, here we are going from up to down, 72 over 54, we will cross multiply it, x multiply by 54, 54x, 6 multiply by 72 करेंगे, you will get the answer for 32. Now dividing both side by 54, you will get the answer x is equal to 8 days. तो ये 8 days जो होंगे, these will be your total days, जो हमारे 54 एथलीट्स के लिए क्या होगी, अब सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अब कितने डेज हमारे पास ज़्यादा हुए, पहले कितने डेज थे, कम टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट में, ठीक है। पहले थे हमारे पास 72 एथलीट्स के लिए 6 डेज। अब हमारे पास 54 एथलीट्स थे ना, उनके लिए टोटल डेज कितने हो गए, 8 डेज हो गए। एथलीट्स कम हुए हैं, डेज क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। तो हाउ मोर डेज यू आर गेटिंग नो, सो कम हेयर, सो रिमेनिंग मोर डेज कितने आ जाएंगे, टोटल डेज कितने हो गए, 8। उसमें से जो हमें गिवन डेज थे मैं माइनस कर दूँ, 8 - 6 ना भी करूँ, सो यू कैन गेट आई थिंक सो यू कैन गेट माई पॉइंट कि हमारे पास कितने डेज ज़्यादा हुए हैं, 6 थे ना। तो एथलीट्स कितने एब्सेंट हुए, 18, तो डेज ज़्यादा हुए, कितने डेज ज़्यादा हुए हैं, 6 से 2 डेज ज़्यादा हुए हैं। सो योर रिमेनिंग मोर डेज आर 8 - 6 इज इक्वल टू 2 डेज विच यू हैव टू फाइंड। Question number 13 now. This is also same like question number 7 and 2, but in question number 7 and 2 we are having two variable for the comparison, but there is this question is little bit different from these two question. In this question we are having 3 variables for the comparison, ठीक है। What is this, 12 glass blowers can make 12 identical washes in 9 minutes. Assuming that all the glass blowers work at the same rate, how long will it take 8 glass blowers to make 32 such washes? So what is given in this question? You can see, we are having 3 variables, glass blowers,
ठीक है, आइडेंटिकल वॉसेस एंड द टाइम टू बी टेकन। ठीक है, सो हमें ये गिवन है कि इफ द 12 ग्लास ब्लोअर्स टेक 12 मेक 12 आइडेंटिकल वॉसेस एंड टेक टाइम 9 मिनट्स। सेम लाइक कहते हैं कि इफ देयर आर 8 ग्लास ब्लोअर्स मेक 32 वॉसेस देन हाउ मच टाइम दे विल टेक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट द टाइम टू बी टेकन इज एक्स। हम ये ज्यूम कर देंगे कि जो 8 ग्लास ब्लोअर्स 32 वॉसेस बनाने के लिए टाइम लेंगे वो क्या है, एक्स है। नो वी विल टेक द प्रोपोर्शन बिटवीन 3 वेरिएबल्स, ग्लास ब्लोअर्स, वॉसेस एंड टाइम। नो, so we will use the original statement there. 12 glass blowers make 12 washes in 9 minutes. 8 glass blowers make 32 washes in what time, which you have to suppose x. ठीक है, नो द what is the main thing. What main thing is this कि now we will place the invert and the direct sign there. ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है जहाँ जिस कॉलम में एक अननोन इन्वॉल्व होगा which you have to find, you will place the direct arrowhead here. वहाँ पे आपने विदाउट एनी कन्फ्यूजन कौन सा आपने यूज कर लेना है, डायरेक्ट का साइन। नाउ कम टू द दिस वन कॉलम। ठीक है, यू विल सपोज कि आपके यहाँ पे ये कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, यू विल आपके पास 2 कॉलम्स है ना, ग्लास ब्लोअर्स और वॉसेस। ठीक है, इन दोनों में दोनों वैल्यूज क्या है, नोन है ना। सबसे पहले आप इसको इग्नोर करेंगे, आप इस कॉलम का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, टाइम के साथ। ठीक है, अब 12 ग्लास ब्लोअर्स जो है वो कितना टाइम लेते हैं, 12 ग्लास ब्लोअर्स 9 मिनट्स लेते हैं 12 वॉसेस बनाने के लिए। अब देखिए कहते हैं कि 8 ग्लास ब्लोअर्स जो हैं वो कितना टाइम लेंगे। अब हम यहाँ पे साइन प्लेस करना चाहते हैं। अब हम खुद देख सकते हैं कि ग्लास ब्लोअर्स कम हुए हैं, ज़ाहिर है मैन पावर कम हुई है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हेयर द मैन पावर इज गोइंग टू बी डिक्रीज, देन टाइम विल बी इंक्रीज, सो वी विल प्लेस द इनवर्स साइन देयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नो कम टू द नेक्स्ट स्टेप, हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, 12 वॉसेस कितने टाइम में बनते हैं, 9 मिनट्स में। एंड हाउ मच टाइम विल बी टेक 32 वॉसेस, 32 वॉसेस कितने टाइम में बनेंगे। अब जाहिर है नंबर ऑफ वॉसेस ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, सो टाइम विल बी डिक्रीज। ठीक है, टाइम विल बी इंक्रीज, सॉरी नंबर ऑफ वॉसेस जो है वो हमारे ज़्यादा हुए हैं। जाहिर है हमारे पास नंबर ऑफ वॉसेस ज़्यादा हुए हैं, मैन पावर क्या हुई है, कम हुई है, तो डेफिनेटली टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो नंबर ऑफ वॉसेस भी ज़्यादा हुए हैं तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। सो वी विल प्लेस द इनवर्स साइन देयर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हम इन दोनों कॉलम्स का कंपैरिजन टाइम वाले कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इग्नोर करेंगे, इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ हमेशा आप डायरेक्ट का साइन लगाएंगे। इसका कंपैरिजन जब आप इसके साथ करेंगे तो 12 ग्लास ब्लोवर्स ने 9 मिनट्स लिए हैं, तो 8 ग्लास ब्लोवर्स हैं, ग्लास ब्लोवर्स कम हुए हैं तो टाइम ज़्यादा होगा। कम है और ये ज़्यादा है तो यहाँ इन्वर्स का साइन आएगा। अब इसको इग्नोर करेंगे, नंबर ऑफ वॉसेस का हम कंपैरिजन करेंगे टाइम के साथ। अब 12 वॉसेस थे तो 9 मिनट लिए हुए हैं। 32 वॉसेस कितना टाइम लेंगे जी, 32 वॉसेस हैं, नंबर ऑफ वॉसेस आर गोइंग टू बी increase, so definitely time will be increased. Hope so you have got my point. Now come to the next step. So here we are going from down to up. It will be x over 9. So you will place the equal sign there. So here you are going from up to down, 12 over 8. ठीक है, it is our criteria. We will write we will write these two ratios in this form. This is the important form to solve this question. ठीक है, 12 over 8 you will place the multiply sign there. ठीक है, और here we are going from down to upward, 32 over 12. So what you will do, these two terms are going to be the multiply, these two ratios are 12 will be cut by 12, 12 से cut हो जाएगा, 8 ones are 8, 8 fours are 32. What will be left? X over 9 will be equal to 4. Now you will be cross multiply. आप इसको cross multiply करेंगे, x ones are x, 9 fours are 36. So how much time will be taken by
8 glass blowers of 36 minutes and this is your final answer. You can see that जब glass blowers कम हुए थे, number of washes 32 थे, वो ज़्यादा हो गए थे. So time हमारे पास definitely क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा ना. तो हमारा देखिए आंसर भी 36 minutes आया है. Hope so you have got my all points. So my dears, now we will do the question number 5, 6, 14, 15 and 16 in your home task. These all questions are same like question number 6, sorry, question number 2, 7 and 13. No different criteria will be used in this question. I will also send the solution form of these question. So I think you will be get all my point. Thank you so much.